Hello, welcome everyone. Good evening. Good evening. So Hi, good nice to see everybody online. Good evening. How's everybody? Good. Good. Great, great. Anil ji, आपका face clear नहीं आ रहा है. Amisha, how are you? I'm fine, ma'am. भारती कैसी हैं? मैं ठीक हूँ. Thank you. Okay. आशिमा नहीं आई आज अभी Yes, तक. ma'am. आशिमा भी और एकता नहीं आई अभी तक. हाँ, right. एकता आ Okay, गई. great. Hi एकता, अपना वीडियो ऑन करें प्लीज. कैसी हैं? How are you? So today is our day 5 of the workshop, and who's going to, who has the agenda in front of himself or herself? Anilji, do you have the agenda in front of you? Yeah. Okay. So let's do a quick recap. Today being day 5 of our workshop, flirting with self-love, leading to a committed man-woman relationship, our 8 days workshop. So let's do a quick revision what we did on day 1, day 2, day 3, day 4, and then start with new inputs for today. इससे हम सबका revision भी हो जाएगा, and those of you who missed bits and pieces in between, it will be a revision. So Anil ji, please read out day 1. What were the topics? Reality check. Day 2, break. No, stay at day 1. Reality check dash. There's something else also. Please read it. Check your baseline. Okay. Yeah, check your baseline. You do not have the agenda in front of you, is it? I can share. Okay, Sonia, please go ahead. Day 1. Day 1 was reality check. Define your own baseline. What's the Very big good. deal about self-love? Wait. And we So had an we'll talk- assignment. Yeah, thank you. So first topic, so our workshop is called, what is it called? You have the name written? Flirting with self. Sonia, can you read out the name of the workshop? Flirting with self-love leading to a committed man-woman relationship. Perfect. Such a catchy name. Okay. Okay, all right. So now day 1. But check I your- want to know why it is only man-woman relationship. It could be any relationship, na Pooja. romantic relationship. Okay. Yes, when you feel complete within yourself, it will transcend into success in everything, your career, all your relationship, you're right, your relationship with your parents, with your children, yes. However, here, because, and again, we're going to discuss, we did this on day 2 and day 3, and I guess you were not there, that's why you've asked this question. Self-love is directly proportional to partner's love. So when you asked me for a second, I was like, yes, because I've had cases wherein there are people who are homosexual. So yes, then, you know, so that's why I rephrase romantic relationship. It could be a woman-woman relationship, whatever. The idea is partner relationship. Okay. So the first topic on day 1 was, can you read just the first topic? Yeah, reality check. Define your own baseline. What's the big deal about self-love? Just the first topic. Okay, so define reality check, define your baseline. In this, what we did was, there was set of 8 questions, okay? And each participant rated himself or herself on the basis of those 8 questions. There were questions like, when was the last time you spent time with yourself? How well do you know each other, yourself? When was the last time you did something for the first time? Things like that. And then every question carried the same weightage. So this was a baseline, you know, when you get into a weight loss program, you always do pre and post, you know. So similarly, we were trying to see where we stand in terms of self-love.
So somebody got 5 out of 8, somebody got 3 out of 8, different scores so that they know where they stand. Please read out the second topic of day 1. What's the big deal about self-love? Correct. In this and all our sessions were just like today, always interactive sessions. So it was never that between 6 to 7 p.m. only I'm talking. So we made it bilingual. हम हिंदी में भी बात कर रहे थे, इंग्लिश में भी, सभी participants बात कर रहे थे, daily assignments हो रहे थे. तो what is the big deal about self love में हमने cover किया कि what is this whole drama and circus around self love. इतना क्यों सेल्फ लव के ऊपर वर्कशॉप्स होती हैं, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट. खुद ही को प्यार करना है, खुद का ध्यान रखना है, तो उससे क्या मिलता है, और अगर वो मिसिंग हो तो उससे नुकसान क्या क्या होता है. एंड देन वी गिव वन असाइनमेंट, assignment number 1 to the participant, which was actually leading to the second day 2 agenda. Okay, so that there's a linkage, so that जब आप वो assignment करें, आप इंट्रोस्पेक्ट करें, सोचें अपने बारे में और गहराई में आपको जानने को मिले. Okay, so now please read out day 2 agenda. Break the damn guilt. Yes, तो day 2 में हमने जो बात की, गिल्ट की बात करी. अमीशा, तुम 1-2 लाइन में बताना चाहती हो डे 2 में हमने क्या क्या कवर किया ब्रेक द डैम गिल्ट में? बुलेट पॉइंट शेयर करो. यस मैम, इसमें आपने असाइनमेंट दिया था कि जो हमें दूसरों, हमने डे 2 में क्या किया पूरा, है ना, मतलब शॉर्ट जी. में गिल्ट किया. जी. आपने बताया ना कि गिल्ट डैम, हमें अपना गिल्ट ब्रेक करना है. तो आपने ये बताया था कि कौन कौन से अदर्स की तरफ से गिल्ट है हमारे और कौन कौन से सेल्फ गिल्ट है हमारे, तो उनको ब्रेक करना था. एक एग्जांपल, अदर्स का गिल्ट, सेल्फ का गिल्ट इन अदर्स जनरल. का, यस यस, अदर्स का गिल्ट लाइक कोई आपको हाइट के लिए कॉम्प्लेक्स फील करवा रहा है, कोई आपको मोटापे के लिए फील करवा रहा है, या किसी ने आपको कुछ बोल दिया, उस तरह का गिल्ट. एंड सेल्फ गिल्ट लाइक हम कुछ कर नहीं पाए, या हमने किसी को कुछ बोल दिया, या मैं अपने सेल्फ के लिए कुछ गिल्ट की मैं अपने करियर पे नहीं फोकस कर पाई, मैं अपनी सेल्फ केयर नहीं कर पाई, उस चीज का गिल्ट. ओके, व्हाट एल्स डिड वी डू? गिल्ट को कैसे डील करना है, गिल्ट को कैसे हैंडल करना है, हेल्दी वे क्या है. जब हमको गिल्ट फील होता है तो हमको खुद से नफरत हो रही है, घिन आ रही है, सो उस बारे में कुछ आप शेयर करना चाहती हैं? आपने बताया था कि अपने ऊपर ध्यान दो, अपने सेल्फ केयर पे, एंड आपने एक्सेप्टेंस के ऊपर बताया था कि आप एक्सेप्ट कीजिए कि आप As you are. यस, ग्रेट. Yeah. सो उसके बाद हमने डे 2 की असाइनमेंट करी which leaded us to day 3. सो डे 3 का क्या टॉपिक है? सोनिया, प्लीज प्रोसीड. Day 3 is accept your baby. यस, तो यहाँ पे जो बेबी है वो हम खुद है, हमारी सोल है. सो एकता, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन डे 3 में हमने क्या पढ़ा एक्सेप्ट योर बेबी में? गिल्ट को छोड़ने के बाद बेबी को एक्सेप्ट करने में एकता, बुलेट पॉइंट्स वुड यू लाइक टू शेयर? या एक्चुअली जो हमारे गिल्ट था उसको हमने इस वे में एक्सेप्ट किया कि हम उसमें से क्या अच्छाई ढूंढ सकते हैं, एंड वी एक्सेप्टेड आवरसेल्फ दैट वे. हमने बेसिकली प्रोग्रामिंग चेंज कर दी. अगर हमको गिल्टी लग रहा है कि मैं जो है पेपर क्लियर नहीं कर पाई, या मैंने वो वाली जॉब क्यों नहीं ली, या किसी ने मुझको चीट किया, तो हमने अपना पर्सपेक्टिव बदला, देखने का नजरिया बदला और उसमें पॉजिटिविटी निकाली. और एक्सेप्ट योर बेबी मतलब खुद को हम जैसे हैं, जैसे चांद में दाग है, अपने वुंड्स के साथ हमने एक्सेप्ट किया. ग्रेट. डे 3 की असाइनमेंट फिर हमने करी which led us to day 4. Day 4 का एक्सप्लेन करना चाहेंगी भारती आप? यस डे 4 का सोनिया डे 4 का एजेंडा टॉपिक आप बताएंगी क्या था? Day 4 agenda was free the bird from the cage. यस, है ना. तो यहाँ पे हमने कहा था कि बर्ड्स ले आए, बट लोगों को बर्ड्स मिले नहीं थे. बट एक्चुअली में चलिए भारती आप बताइए, बर्ड कौन है और केज क्या है, और डे 4 में हमने क्या स्टडी किया था? मैम वैसे तो मैं आई नहीं थी, बट फिर भी मैं बताती हूँ कि बर्ड्स तो हम ही हैं और केज हमारा अंदर का डर है कि हमें उससे, जो लोगों से हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं, हमें उससे बाहर आना चाहिए. तो मतलब यही मुझे समझ में आया. अच्छा, अनिल जी आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें हमने क्या किया था?
डे 4 में आप नहीं आए थे ना, देखो इसीलिए आपकी अटेंडेंस ही लगी थी ना, देखो बाई चांस आप ही पकड़े गए। अनिल जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, बर्ड मीन्स whatever things you have, जो आप concepts हैं आपके, उनको उनसे निकल के बाहर आना है, and you have to be like a free bird. केज में हमने क्या पढ़ा था? केज क्या है? कितने टाइप की केजेस हैं? क्या क्या केजेस हैं? Cages are what you are dependent, other people are saying, or the I would say that जैसे आप किसी चीज से घिरे हुए हो, उनकी मदद, जो आपके सोशल वो हैं, सोशल वगैरह वो हैं सब, उनसे तो उससे बाहर निकल के आना है। हाँ, तो हमने केज में देखा, ये केज पेरेंट्स की भी हो सकती है, सोसाइटी की भी हो सकती है, दुनिया क्या कहेगी, पड़ोसी क्या कहेगा, मेरा बॉस क्या कहेगा, जो हमने अपने पाँव में बेड़ियां बांधी हुई हैं। तो इस तरीके से हमने अलग अलग सोसाइटी, बिलीफ सिस्टम की बात करी कि बच्चा पैदा होता है तो जैसे एनएलपी में, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में मैं पढ़ाती हूँ, बिलीफ सिस्टम स्कूल से बनना शुरू हो जाता है, फिर कॉलेज में कैसे कैसे, लेकिन सारी बेड़ियों में से, सारी केजेस में से which did we identify is the most strongest and negative cage? Strongest was closest people to you, उनका नहीं, केज वो सेकंड बेस्ट था, बिकॉज उस दिन भी आपने कहा था पेरेंट्स। यस, सेल्फ। किसने बताया ये? वेरी गुड, वेरी गुड। किसने बताया सेल्फ? More or less, Pooja, it is the self-limiting belief Absolutely, we absolutely put ourselves in. हाँ, तो इसमें मैं ये एक बार क्लेरिफाई कर लेती हूँ कि जो सड़क पे चलता हुआ हमें कोई कुछ बोलता है, हमको इतना इमोशनली हर्ट नहीं होता। तो सेकंड जो टॉक्सिक और मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सेकंड नंबर पे केज है, वो है हमारे इमीडिएट फैमिली मेंबर्स और इमीडिएट क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, क्योंकि उनसे हम इमोशनली अटैच होते हैं। तो अगर वो बोलते तुम मैनिपुलेटिव हो, तुम ऐसी हो, तुमने वैसे किया, तो हम फिर परेशान हो जाते हैं कि यार उसने मेरे बारे में ऐसे सोचा, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरे बारे में ऐसे सोचा। तो वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट केज है, जहाँ पे हमारे कुछ क्लोज फ्रेंड्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, जो हमारा इमीडिएट सर्कल है, वो लोग जो हैं वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट है। वो हमको इतना गिल्ट देते हैं सुना के, जैसे नैगिंग हस्बैंड हो सकता है, नैगिंग वाइफ हो सकता है। सबसे बड़ा और सबसे टॉक्सिक नेगेटिविटी वाला जो केज है, वो सेल्फ क्रिएटेड केज है, जहाँ पे हमने खुद ही अपनी केजेस बना रखे। तो उस केज को कैसे तोड़ना है और सेल्फ एक्सेप्टेंस के ऊपर कैसे काम करना है, ये हमने डे 4 में करा। फिर लीडिंग असाइनमेंट करी। नेक्स्ट डे का पढ़िए क्या है? Next day, day 5, nurture the soul. करेक्ट। और आज हमारा डे 6 है। मैंने बार बार डे 5 बोला, किसी ने मुझको नहीं टोका। तो डे 5 में हमने क्या? नर्चर द सोल। तो हमने बात की कि हमको गिल्ट को रिमूव करके सेल्फ एक्सेप्टेंस की तरफ काम करना है। वहां पे अभी किसी ने ये पॉइंट मेंशन नहीं किया कि सेल्फ वर्थ के बारे में भी हमने बात किया कि पहले गिल्ट जाएगा तो सेल्फ एक्सेप्टेंस आएगा, एक्सेप्ट योर बेबी। फिर सेल्फ एक्सेप्टेंस आएगा तो हमने सेल्फ वर्थ की बात करी कि जिससे हम अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हमारा नहीं रहेगा, हमें अबैंडनमेंट इश्यूज नहीं होंगे, और हम कुछ भी इनसिक्योरिटी या फ्रॉम द स्पेस ऑफ स्कैर्सिटी नहीं करेंगे कि अरे हमको तो बॉयफ्रेंड चाहिए, या यार हमको तो शादी करनी है। शादी करनी है तो इसलिए करनी है कि अपनी खुशी बांटे, लेकिन इसलिए नहीं करनी कि अरे बुढ़ापे में कौन होगा, अरे बिल्स कौन देगा, अरे दुनिया क्या कहेगी। So these statements or these feelings or emotions are coming from the lack of security or your insecurity or from a space of scarcity. So such relationship, both the partners will only end up extracting from each other. Okay, man to man, woman to woman, man to man, man, woman, whatever, doesn't matter between two people, then it will be not even be transactional, it will be very ugly. And then it's a matter of time when they'll split or some, and then also we also spoke about abuses, wherein a lot of participants spoke about that, if your husband abuses you, or interestingly, these days even women are beating up their husbands. Okay, so and I shared वो तो और मिट्टी भ्रष्ट है, क्योंकि औरत तो जाके बाहर बोल सकती है मार्केट में पति मार रहा है, पति तो दोस्तों को बता भी नहीं सकता मेरी बीवी पीटती है बेडरूम में।
कितनी बेइज्जती वाली बात है। आते हैं मेरे पास लड़के रोते हुए, मैम गुस्से में हाथ उठा देती है, माँ बाप को नहीं बोल सकता, दोस्तों को नहीं बोल सकता, बेइज्जती होगी कि कैसा मर्द है तो अपनी बेबी से पिटता है ना। और एक दिन मैंने अगर उसको लगा दी तो सीधी हो जाएगी मैम, बट आई कांट डू दैट, यू नो, उसके मूड स्विंग्स होते हैं। सो हमने अब्यूज को भी देखा कि कैसे अगर अब्यूज को चेक ना किया जाए तो टाइम के साथ अब्यूज की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। अगर महीने में एक बार है तो हफ्ते में एक बार होने लग जाएगा, पंचिंग बैग बन जाते हैं फिर हम। तो अब्यूज को हैंडल कैसे करना है, हमने ये भी डिस्कस किया कि सहते रहें कि बच्चा हो गया है, या बिल्कुल अलग हो जाए, फिर कैसे होगा अगर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। तो बहुत ज्यादा जो है हमने डिटेल में हर रोज, और आई एम सो थैंकफुल टू द डिवाइन कि ये वर्कशॉप इतनी बढ़िया जा रही है, टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो डे 1 में और थोड़ा थोड़ा डे 2 में लोगों को इनहिबिशंस थी कि अरे लोग देखेंगे या और पार्टिसिपेंट्स मुझे जज करेंगे या मेरी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेगी, वो धीरे धीरे चला गया, ब्रेकिंग द आइस। उसके लिए एनकरेज करने के लिए मैंने अपने पास्ट के अपने एग्जांपल्स शेयर करे, अपने रिलेशनशिप फेलियर, अपना अब्यूज का एक्सपीरियंस, तो वो सारी चीजें जिससे कि, एंड आई वाज वेरी क्लियर कि मुझको शेयरिंग इसलिए नहीं करनी है कि मुझको कैथार्सिस की जरूरत है, मेरी क्लेंजिंग हो चुकी है, बट मैंने इसलिए शेयर किया कि उससे आपको हिम्मत मिले, एक वॉकिंग द टॉक हो कि हमारा लीडर, हमारा गुरु भी खुल के बात कर सकता है जब अपनी समस्या के बारे में, तो हम क्यों नहीं। और दूसरा की इनहिबिशन शेड हो। तो धीरे धीरे करके सब लोग आगे आए और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी। तो हमने अब्यूज के बारे में भी बात करी, ठीक है। नर्चर सोल कैसे करना है, कल हमने असाइनमेंट दी तो किसी ने कहा हमने म्यूजिक सुना, किसी ने कहा हमने खाना बनाया, किसी ने नेल पेंट लगाया, किसी ने अपने आपको बॉडी को बहुत अच्छे से पैम्पर किया। तो ये सब करके हमने नर्चर द सोल किया। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो निकल के आया, कौन बताएगा? एकता तुम बताओगी नर्चर द सोल में बुलेट पॉइंट्स कल? क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है, लाइक सोल इज अ लाइफ फोर्स, तो अगर हम उसे एनर्जी देंगे या एनर्जी देंगे तो हमारा जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, ओवरऑल हमारा जो ऑरा है वो इम्प्रूव होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और हमने ये देखा कि नर्चरिंग द सोल की शुरुआत हमने करी अपनी फिजिकल बॉडी पे काम करके, है ना। मैं ये पॉइंट एक्चुअली चाह रही थी कि जैसे हम नेल पेंट लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, 5 सेंसेस को हम प्लीज करके, जैसे आपने बात की मैंने नेल पेंट लगाई है और सुबह से 10 बार मैं अपना हाथ ही देखती जा रही हूँ, लेकिन फिर हमने ये भी समझा कि अगर हम बहुत डीप रूटेड जाके अपने सोल को नर्चर करेंगे तो फिजिकल डायमेंशन कम होता जाएगा। और वो निकल के क्या आया, मेडिटेशन करें या साधना करें या ध्यान में बैठे या रेकी करें, तो जैसे जैसे हम इंटरनली काम करेंगे फिजिकल बॉडी को डेकोरेट करके सोल नर्चरिंग की जो है रिक्वायरमेंट धीरे धीरे कम होती जाएगी और खत्म हो जाएगी। तो सोल को नर्चर करना है। हमने बोला या तो गाड़ी में पेट्रोल हम डाल रहे हैं, गाड़ी चल रही है और पेट्रोल खत्म हुआ, गाड़ी रुक गई, तो इसी तरीके से बाहर से हमने नेल पॉलिश लगाई, बहुत अच्छा लगा, फिर मूड खराब हो गया, बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ, फिर हमने स्क्रब किया वैक्सिंग की, फिर बहुत अच्छा हो गया, फिर हमने बोला जी अपना खुद का ही पेट्रोल बम बना लो, है ना। तो उसके लिए हमने बोला कि अपने अंदर ही साधना, अपनी मेडिटेशन रेकी करो। अलग अलग पार्टिसिपेंट्स को सजेस्ट किया गया कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आपको रूट चक्र मेडिटेशन ज्यादा कामगार आएगी, आपको कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन करनी चाहिए, आपको ग्राउंडिंग करनी चाहिए, ऐसे भी हमने डिस्कस करा। तो ये हमारा कल हुआ, ठीक है। और कुछ ऐड करना चाहती हो तुम इसमें एकता? या मैम, जैसे मैंने कल बोला था कि हम जैसे प्लांट को वाटर करते हैं, the same way we should water our souls and nurture our souls. And मेरे ख्याल से जो मेडिटेशन प्रोसेस है एंड हीलिंग जो प्रोसेस है वो परमानेंट सोल्यूशन है, rather than लाइक जो फिजिकली हम टेम्पररी चीजें करते हैं, उससे बेटर है कि हम परमानेंटली सीख ले, जिससे हम हमेशा अपनी सोल को नर्चर कर सकें। ओके ओके, वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, एनी अदर पार्टिसिपेंट वांट्स टू ऐड एनीथिंग एल्स? जो हमने एक अभी तक का, आज डे 6 है और 8 दिन की वर्कशॉप है, तो वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड। तो हमने जो एक क्विक रिवीजन किया है, जैसे सबका रिवीजन हुआ है, जैसे कुछ लोग बीच बीच में नहीं थे, कोई भी पॉइंट आपको लगता है मैं भूल गई हूँ या आप ऐड करना चाहते हैं, एनी पार्टिसिपेंट प्लीज डू इट।
soul के लिए, पूजा- because whatever we do on work on soul, that is carry forward with the next life. Very good point. Yeah. Yes. तो हमने ऐसे डिस्कस किया नर्चर द सोल में कल कि जो भी हमारी हमने ये डिस्कस किया कि व्हाट इज द एक्सपायरी डेट ऑफ आवर बैंक बैलेंस, ऑफ आवर एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड एवरीथिंग. वी डिस्कस एक्सपायरी डेट जो है डेथ है. अगले बर्थ में आके वी हैव टू वंस अगेन rebuild our bank balance, our beauty. Again, we have to get our degrees, engineering, MBA, whatever. However, rightly said Anilji, whatever soul growth will happen today, next birth, your journey begins from there. So it's totally logical, it makes sense, and it's worth to invest on your soul level work. Great. Very good. Thank you for sharing. Any other point? Somebody else was also sharing. Yeah, Pooja, I was sharing about the same thing that, how all our materialistic achievements and the titles, everything will expire and will be at a dead end when we die. But our soul journey continues, and whatever we have learned in this Yes. lifetime will be Yes. carried forward in the next lifetime. Absolutely. And everything counts. If you're chanting, like we spoke about Namyo Renge Kyo chant yesterday, Nichiren Buddhism, or whatever, everything counts. We spoke about Reiki. Couple of you asked yesterday, share something about Reiki. Then we also did a briefing on Reiki. What is Reiki? How many levels? How it helps us? How Reiki happens to be mother of all the healing, like when we have pranic healing, theta healing, magnified healing, lama fira. I've told you even on Buddha Purnima meditation day, when we were doing this 3-day workshop back then, that 18,000 healing modalities will come on earth. You never know, tomorrow I or you also happen to become a channel and get some healing. Like Dr. Rusui ko channeling hui और उन्होंने रेकी बनाया, तो हो सकता है कल को मुझको कोई हीलिंग आ जाए. मुझको तो बहुत स्ट्रांगली लगता है कि मुझसे कोई हीलिंग आने वाली है, बहुत ही स्ट्रांगली लगता है ना. सो हो सकता है आप सबसे भी कुछ हो जाए. So that is also what we discussed. Great. And anything else? Even Pooja, I feel that, not just me or you, but all of us are a medium, for other good things to come. So like, I feel that being a career counselor, I myself feel that I'm just the medium guiding the students. They are doing all the work themselves, but I'm just being that medium between the best of universities, best of courses, and the application that the children are looking for. So it could be any of us who can, Absolutely. practice your work, your profession in that way, that you are just the medium, you are the guide, and things are being done through you. Absolutely. Yes. Great. Okay. So moving on to day 6 today, please read the agenda. Today's agenda is innerwear and nightwear. Yeah, such a sensational topic. Thank you. So let's proceed on day 6. So हम कहेंगे कि हम self love की बात कर रहे हैं, और self love में ऐसा topic, and when we have made female participants, we have to talk about innerwear, nightwear, what is the big deal. So like I said yesterday, yes, there's a big deal. We're going to connect it with astrology, numerology, Vastu, 360-degree occult, what kind of impact it has in our life. And you will see that it has a potential of changing your life 360 degrees. So here we go. Now we have to understand, कई बारी क्या होता है, और आजकल तो अक्सर हो रहा है, because of the lockdown, हम लोग घर में बैठे हैं, रात को 3-3 बजे तक सो रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, फिर नहा नहीं रहे हैं दोपहर तक, रात के जो कपड़े पहने हुए हैं नाइट वेयर वही दिन में पहना हुआ है. All that is happening. Okay, quick question. सब लोग बताएंगे वो रात को कितने बजे सोते हैं और सुबह कितने बजे उठते हैं. अमीशा रात को कितने बजे सोती हो? On an average, plus minus. Sleep time, wake up time. अमीशा? Yes, ma'am. मैम इट्स मेरी तो स्टडी पे डिपेंड करता है. फिर on an average? हाँ 3 to 4 हो ही जाता है मैम. 3 PM to 4. उठते कब हो? 12 बजे? मैम नो मैम, इतनी जल्दी नहीं. 8 या 9 बजे तक उठ जाती हूँ. तो नींद कैसे पूरी करती हो? दोपहर में मैम हो जाता है, दोपहर में 1 आवर ले लेती हूँ स्लीप. दोपहर को सोती हो ना? Yes, ma'am. सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है. चलो ठीक है, But 3-4 ma'am- बज जाते हैं. ब्रह्म मुहूर्त करके सोती हो तुम, या हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं ध्यान लगाने Yes, के लिए. ma'am. तुमको ये रहता है कि एक बार मैं ब्रह्म मुहूर्त को खींच के ले आऊंगा, एक ब्रह्म मुहूर्त भाग ना जाए, है ना? मैम मेरी उठेगी ब्रह्म मुहूर्त में. अरे नहीं मैम, प्रॉब्लम होती है ना वोट दिया, कि मैं
अच्छा ठीक है. Anil ji, wake up and sleep and wake up time please. Around 10:30, 7 o'clock, 6:37. You are a good boy. Okay, great. Ekta, I sleep around 2 o'clock and I wake up at 10 o'clock. करती क्या हो 2 बजे तक? Instagram. नहीं, मैं सच में जानना चाहती हूँ. अगर मैं तो जगी हूँ तो मैं तो काम कर रही हूँ, सेशन में हूँ, कोई यूएस का सेशन चल रहा है. 2 बजे तक करती क्या हो? मुझको सच में जानना है. I'm चलो actually ठीक है. yeah, social sites and all. ओके, तो ये दिन में नहीं हो सकता क्या? मतलब ये रात में ही होता है? मैम दिन में मतलब पता नहीं, लाइक शेड्यूल कुछ फिक्स नहीं है. हाँ, आप लोग ना यूएस टाइमलाइन से काम कर रहे हैं, सबका वीजा लगाने वाले हैं हम यूएस का. ठीक है. भारती, आप कितने बजे सोती हैं? एंड यू हैव अ डॉटर विद यू, सो आप लेट सोएगी तो डॉटर भी जागी रहेगी. भारती नहीं मैम, कितने मैं बजे सोती हैं? 12 साढ़े 12 बजे सो जाती हूँ, 7:30 शार्प उठ जाती हूँ. चलो आप 12 साढ़े 12, यू आर डूइंग फेयरली वेल एज कम्पेयर टू अदर्स. यहाँ 3 4 दो तो बज ही रहे, आपका 12 साढ़े. ठीक है. हाँ. और बिटिया भी आपके साथ 12 साढ़े नहीं 12 नहीं तक जागती है? मैम, बिटिया 10 बजे सो जाती. लास्ट उसकी जो है ना डेट, जो लास्ट उसका वो है डेडलाइन, वो 10 बजे. और सुबह तो मॉर्निंग कल में को अगर वो क्वेश्चन करेगी मैम, अगर कल को वो क्वेश्चन करेगी मम्मा मेरे लिए टाइमलाइन है, व्हाई नो टाइमलाइन फॉर यू, देन? मैम मैं तो स्टोरी पढ़ती हूँ रात में. स्टोरी तो दिन में भी पढ़ सकते हैं. चलिए सोनिया, हाउ अबाउट यू? Yeah, my schedule is also similar to Anil ji. Like I usually go to bed by 10:30, 11, and I'm up by 6:30, 6 o'clock, like that. And I don't need Very an nice. alarm to get up. It's just body clock. बॉडी क्लॉक सेट. Mm. यस. ओके, ग्रेट. जैसे कुछ लोग बोलते हैं सोने से पहले तकिए को बोल दो कि मुझको इतने बजे उठाना, नींद हो जाती है. वो क्या होता है? एक्चुअली इट वर्क्स. हैव यू एवर ट्राइड? हाउ इट वर्क्स इज, वो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है, माइंड की वायरिंग ऐसे. सो यू डोंट नीड अ अलार्म. दैट्स व्हाट आई डू. Anyways, we have to understand 2-3 things here. मैं यहाँ पे हीलिंग पर्सपेक्टिव, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु सब बताऊंगी. देखो, बाय डिफॉल्ट जो हमारा ह्यूमन बीइंग का बॉडी है वो है अलाइंड किससे? सोलर एनर्जी से या लूनर एनर्जी से? बताएं अनिल जी. I'm not sure. Okay, anyone wants to take a guess? Ma'am, actually both, but mostly I think lunar energy. No, solar actually. So I'm not talking about the emotion and feeling part. That is where moon sets into picture. I'm talking about our overall well-being and overall function. सूरज नहीं निकलेगा तो कैसे हम, सोलर एनर्जी नहीं होगी ना, डाइजेशन ही नहीं होगा, खाना ही नहीं पकेगा, कपड़े नहीं सूखेंगे. सोचो सूरज ना हो तो. सो हमारा बाय डिफॉल्ट जो है सोलर एनर्जी सन की वाइब्रेशन से अलाइंड है. सो इफ वी अलाइन आवर बॉडी, our timings, our schedule as per the sun, then we are going to rise in life, career wise, relationship. And if we do vice versa, देखो प्रॉब्लम हो रहा है. तो पुराने लोगों ने जो कहावतें बनाई हैं ऐसे ही नहीं बनाई है ना? क्या क्या कहावत बनाई हुई है? Early to bed and early to rise make a man and a woman rich, healthy, wise. ठीक है, ये ऐसे ही नहीं बनी है कि तकिया कलामत जी चलो हम भी अपना कोई कोटेशन बनाए. That waking up till midnight makes you very nice. There's no saying like that, right? So आप क्या कर रहे हैं? आप उल्टा कर रहे हैं. आप रात भर जग रहे हैं, आप फिर सुबह सो रहे हैं. अगर आप अर्ली उठे 4 o'clock नहीं तो ठीक है, धीरे धीरे 5 बजे 6 बजे whatever. So धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है सूरज से अलाइन हो रही है. आयुर्वेदा में भी मैं यही पढ़ाती हूँ. जो आपका मणिपुरा चक्र है, सोलर प्लेक्सस चक्र है, उसमें ज्यादा वाइब्रेशन आती है, वो बैलेंस होता चला जाता है, आपका करियर अच्छा होता जाता है, जॉब, आपकी बिजनेस, आपके रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ. ओके, दैट्स वन. अब अगर इसको मैं एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, रात भर जगे रहना, सुबह लेट उठ के कपड़े ना बदलना या रात वाले कपड़े पहने रहना, तो आपका जो है राहु खराब होता है. सबको ये मालूम है. देखो 9 के 9 प्लैनेट बहुत अच्छे हैं और मेरे तो शनि और राहु और केतु फेवरेट है. पूरी दुनिया उनसे डरती है क्योंकि जब आपको पता चल जाए ना हर प्लैनेट के हिसाब से कैसे काम करना है तो आपका फ्रेंड बन जाता है. सीधी सी बात है. लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग इंक्लूडिंग मी हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव.
ओके, सो व्हेन वी फाइंड आउट दैट इसकी क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है और उसको उस हिसाब से डील करो। उसका मूड खराब होता है इस बात से, अगर वो बात करोगे तो लड़ाई होगी, अगर वो बात अवॉइड करोगे तो क्या होगा, बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे। ऐसी प्लैनेट्स के साथ है, ठीक है। तो राहु केतु शनि तो मेरे फेवरेट प्लैनेट है, क्योंकि मुझको पता है उनका मूड खराब किस बात से होता है, मैं वो करती नहीं हूँ, तो उनकी ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग आती है, और उनकी ब्लेसिंग जो है आपको जमीन से चांद पे ले जाती है, ठीक है। तो जब आप रात को लेट जगे हैं और कपड़े नहीं बदल रहे, सुबह नहा नहीं रहे टाइम से, रात के कपड़े पहन के बैठे हैं, तो आपका जो राहु है वो खराब होता चला जाता है। आजकल सारा काम ऑनलाइन ही हो रहा है आप लोगों का, करियर का सीधा ये राहु से है, तो करियर आपको चौपट होता चला जाएगा। इसको एस्ट्रोलॉजी से समझ लो आप, ठीक है। शैडो प्लैनेट है, लेकिन जो है आपका वो खराब होता चला जाएगा। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी आ गई, ठीक है। इनरवेयर भी अगर आप नहीं बदलोगे, स्मेल आ रहा है कुछ, आपको लगे मैम स्मेल तो आ नहीं रहा, मैंने डीओ मारा, मैं एसी में बैठा हूँ, स्टिल आपका राहु खराब हो रहा है। तो आपको सुबह आपको जल्दी उठना है, रात को आपको टाइम पे सोना है, रात के कपड़े आपके अलग होने चाहिए, नाइट वेयर, क्योंकि उसके भी बहुत सारे रीजन है। एज पर आयुर्वेदा ले लो, एस्ट्रोलॉजी ले लो, कैसे भी वास्तु ले लो, क्योंकि आपको कंफर्टेबल स्लीप चाहिए, तो वो लूज आपके नाइटी या पजामा या व्हाटएवर, वो लूज आपके कपड़े होंगे। दिन के कपड़े आपके थोड़े ऐसे होंगे जैसे आप स्मार्टली काम कर सको कंपैरेटिवली, और रात के कपड़े सुबह उठते ही नहा के बदलने हैं, वरना राहु दूषित हो जाएगा। इनरवेयर कितनी भी सर्दी हो, विंटर्स में 2-2 दिन पहन लेते हैं, नहीं, फिर आपका राहु खराब हो जाएगा। यू हैव टू चेंज योर इनरवेयर एवरी डे, ठीक है। अब मैं इनरवेयर के बारे में कुछ और बात कहना चाहूंगी, ठीक है। दो चीजें आज मैं दिन में सोच रही थी, नॉर्मली ऑलमोस्ट ऑलवेज आई नेवर प्लान अ स्क्रिप्ट फॉर माय सेशन, लाइक आई ऑलवेज से, मैंने इस वर्कशॉप में भी 1-2 बार बताया कि सोर्स से कनेक्ट होकर जो भी आता है, पार्टिसिपेंट्स उस दिन जो भी होते हैं, उनके जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी डिस्कशन होती है, अकॉर्डिंगली आई गो। फिर भी दिन में मुझको 2 चीजें याद आई जो मुझे पास्ट में, मैं नाम नहीं ले रही किसी का, बट 2 लेडीज ने शेयर करी और मुझको बहुत ही दुख हुआ था। उनमें से एक मैरिड थी और एक सिंगल थी, बॉयफ्रेंड का एग्जाम्पल था, वो मैं शेयर करना चाह रही हूँ। जब भी इनरवेयर की बात आती है, खैर वो शेयर करने से पहले फिर एस्ट्रोलॉजी में आते हैं। जब हम कोई भी फटा हुआ कपड़ा पहनते हैं तो हमारा सैटर्न या शनि नाराज हो जाता है, ठीक है। कई बार हम देखते हैं, मोजो की भी बात कर लेते हैं, सिर्फ इनरवेयर या नाइटवेयर की बात नहीं है, जब तक जूते पहने पता नहीं चलता। किसी को बोलो रियलिटी चेक, जरा जूते उतार के आना, किसी की सॉक्स में से स्मेल आती है, किसी के ऐसे पाँव उठाते हैं तो फिर में पीछे होल होता है, तो आपका शनि खराब हो रहा है, दरिद्रता लाएगा। उसको सिलना नहीं है, पैच नहीं लगाना है, जहां पे कुछ कंडम हुआ कपड़ा उसको फेंकना है, आप थ्रो इट। सिमिलरली विद योर इनरवेयर, है ना, कई बार हुक खराब हो गया, हमने कुछ सिला टांका लगा दिया, नहीं, आपका शनि खराब हो रहा है। और इनरवेयर और नाइटवेयर के साथ ज्यादा, क्योंकि उसमें राहु की भी इन्वॉल्वमेंट हो गई है, तो डेली बदलने हैं आपको इनरवेयर और नाइटवेयर। रात का नाइटवेयर जो है सुबह उठते ही नहा धो के आपको चेंज करना है, फटा पुराना घिसा जिप खराब आपको नहीं पहनना है। ये चीजें जो है एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझिए, ठीक है। अच्छा, अब इनरवेयर की अगर हम बात करें, तो क्योंकि हमारा, जैसे हम 5-6 दिन से डिस्कस कर रहे हैं इस वर्कशॉप में, अगेन our 5 senses are so limited and we are conditioned so deeply that we are only investing time, energy and everything in our decorating our outside body. तो बाहर तो हमने अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, अंदर किसकी क्या असलियत है वो दिखती नहीं है, तो अंदर सारा झोल चल रहा है, and that is what is disturbing. So 2 examples. One married woman came to me for a very long time, wherein she was financially dependent on her husband. तो वो डिवोर्स नहीं ले सकती थी, छोड़ नहीं सकती थी कि बच्चे भी हैं, समाज क्या कहेगा, और मैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट हूँ। लेकिन उनका हस्बैंड बिग टाइम वुमनाइजर था, और वो मुंह से बोलता था कि हाँ भाई, आई लाइक वैरायटी, आई विल गो टू डिफरेंट वुमेन, there's so much beauty in the life, I want to do it, you want to stop me? He was so open about it. This lady tells me, ma'am, पता है मैं क्या करती हूँ? I buy new lingerie to attract him. I feel so sad. Again, where is it coming from? It is not coming from creating passion or being romantic, that, oh, my husband loves me so much, let's spice up our bedroom life. It is coming from so deep insecurity. I told her, अधिकतर जो है ना स्पाउसेस शीशे के आगे खड़े हो जाते हैं, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पता चलता है स्पाउस के कि मुझ में कुछ कमी है, एंड मुझ में ऐसी क्या कमी है कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ बाहर जाके अफेयर कर रहे हैं।
आप में कमी नहीं है, उसमें कमी है। ओके, ये आप में कमी नहीं है। सो उसने अपने आप में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जताया। हस्बैंड को वो छोड़ नहीं सकती, कन्फ्रंट नहीं कर सकती बिकॉज फाइनेंशियल डिपेंडेंस है। इन टर्न इट इज गेटिंग so low as and as sad as that हम कुछ महंगा है क्या जो विश्वामित्र को हमको प्लीज करना है कि हम अच्छा इनरवेयर लाउंड्री लाएंगे so that we can attract our husband? Is that the way to get your husband's love and attention? That's so sad. So anyways, she got the point. I taught her Reiki, I sent a lot of crystals. For months and months I did her counseling. We worked on building her confidence. We built on her sacral chakra. And I told her that if your husband is a womanizer and he's going out and he's so blunt and shameless about it, it's his character issue. He lacks integrity. You are no less. You're very beautiful. You are no, ma'am, मैं तो इतने साल 15 साल की शादी होगी, मैं तो बदसूरत होगी. Then I taught her self up. अगर तुमको लग रहा है you are not in shape, this should not be the fuel, reason कि मेरा husband बाहर जा रहा है मैं उसको attract करूं. Your reason should be कि यार. And then she broke down. She said 15 साल में अपने इन-लॉज को खुश करना है, कभी बच्चों को खुश करना है, कभी पति को खुश करना है. मेरे ना सारे पति के दोस्त कहते तेरी बीवी बेस्ट है. I said okay, good, you got that award, but you are sulking, you're frustrated. When will you start taking care of yourself? Then we taught her self-love. Then she started working on herself. मैम मुझको अच्छे से इंग्लिश बोलना सीखना है, मुझको कॉन्फिडेंस करना है मुझे. And then she got so much transformed. Okay. Another example, single girl. This is really sad. Okay, when she came and met me in Gurgaon, I was doing sessions. I was doing one-to-ones in Gurgaon. Very pretty girl. Okay, very pretty girl comes and says that, again very sad. Okay, something like my boyfriend says that you're good in bed and just don't open your mouth. Okay, and because she will confront him. That are you cheating on me? When will we get married? Have you told your parents? Again, I'm so insecure that my boyfriend will leave me, and I know that my boyfriend is cheating on me. Otherwise, insecurity kyun hoga? Or ladka kyun hai? Only to have fun. And then he's probably, manipulating or whatever. And then he will make statements like, you keep your mouth shut, or till the time you keep your mouth shut, you look pretty. Otherwise you don't. And she was doing the same stuff. I got a tattoo. I got this innerwear to attract him. I said, no. In our last 5 days, one more point I think जो revision में cover नहीं हुआ, वो ये हुआ कि हम पहले गलत partner ढूंढ लेते हैं और फिर पूरा जीवन लगा देते हैं कि यार हम तो अपने relationship के ऊपर काम करेंगे, अच्छा करेंगे. Starting में ही गलती हो जाती है, right? So first, the choice, that decision making, the choice of finding the right partner is so important. After that, you work on relationship. Okay. Now coming back to the innerwear, we understood that there's Rahu, Ketu, Shani involvement. फटे पुराने कपड़े नहीं पहने, रात के कपड़े change करने हैं, daily change करने हैं. 2 बार shower लें, nothing like that. Evening shower भी लें, 3 बार ले सकते हैं सोने से पहले. अगर इंसोम्निया है, रात को नींद नहीं आती तो आपका वो प्रॉब्लम भी चला जाएगा. सुबह नहाएं, शाम को नहाएं, सोने से पहले नहाएं, नहीं तो एटलीस्ट मॉर्निंग इवनिंग करें, राइट? एंड द इनरवेयर should be nice, just like your outward clothes, and it should be nice in a way so that it adds to your confidence. अरे आपको खुद को देखना है भाई. अगर आप सिंगल हैं तो आपको खुद, it should be pampering. It should be good for you. It adds, जैसे हम बात करें, हमने नेल पेंट लगाया और पूरा दिन हम अपने हाथ को देखते रहे, तो ये चीज भी आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगी. Okay, so this is also very important. क्या right size है, क्या color fade है, all this makes lot of difference. When I revived, when I came out of my depression, मुझको कितना टाइम पता ही नहीं चला कि क्या sizes है, क्या है, हमको कुछ होश ही नहीं है क्या चल रहा है. So again, lack of self-love. We are not taking care of ourselves. That is what it boils down to. Okay, so that is the importance. Now, if anybody has any other point to add or share, please add. If you have a question, please ask. हमने कल एक असाइनमेंट भी की थी, अगर कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो बता सकता है. और आशिमा, हेलो, अपना वीडियो खोलो. आशिमा, शायद आप आज थोड़ा लेट आई हैं, सो आशिमा से ही हम शुरू करते हैं. आशिमा, if you have any question, if you want to share anything, and I was wondering आप कहाँ रह गए, लेट क्यों गए?
मैम थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था, अनअवॉइडेबल। No problem. हाँ जी, मतलब मैंने एक्चुअली बिल्कुल बीच में से ज्वाइन किया है, तो मैं बस वो सुन ही रही थी कि आप जब राहु और शनि देवता के बारे में बता रहे थे, तो मतलब आज तो खैर मैं थोड़ा सा मतलब नोट्स ही लूंगी क्योंकि मैं शुरू से नहीं थी, तो कुछ ऐसे ऐड करने के लिए है मैं नहीं। वही तो सोचू, आज तो हमारे नोट्स ही मिस हो गए। हमारी किताब छपनी है, उस पर आपके नोट्स जाने हैं, तो आज तो हमारे नोट्स ही रह गए, हमारा मॉनिटर नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं। Anybody else wants to share anything? Any question? Anything you want to share from assignment? या आज सबसे बड़ी चीज क्या सीखी? वन बाय वन सभी बोल दें, 15 मिनट है वैसे हमारे पास। अनिल जी बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? Say that cleanliness we have to do, take care of ourselves and clean clothes, take wash, बाथ वगैरह लेना है जैसे आपने बताया, that's good. Normally तो 2 दफा तो लेता हूँ मैं, but not 3 times of course. And changing clothes, of course, in the morning you change your clothes. But जब से ये पैंडेमिक चल रहा है, अपने घर बैठे रहते हैं, तो कई दफा फिर घर में भी वही लूज क्लोथ पहने होते हैं तो चेंज नहीं करते, सो जाते हैं उसमें। नहीं तो जैसे बाहर जाते थे तो मतलब when you used to go out, then you come and you change your into kurta pajama or whatever, shorts or t-shirt, depending on the weather you change accordingly. So but I think it's Yes. better to change at night loose clothes and everything. Great. Amisha, what do you want to share or add or ask? मैम मैं भी नाइट मतलब मैं भी वही यूजली मैं तो वर्क नहीं करती, नहीं ऑफिस का कुछ है। मैं भी दिन में जो वियर करी रहती हूँ वो पहन के सो जाती हूँ, बट आई विल चेंज माय हैबिट बिकॉज मेरा तो स्टडी शेड्यूल रहता है। Time for Yes, time shopping, for some night shopping. dresses. Yes. Okay, anything else? No, ma'am. अच्छा नाइट वेयर लीजिए। अभी तो बहुत अच्छे सूट्स भी चल रहे हैं, जैसे Yes, डिफरेंट yes. कलर्स, कोटेशन, फिर शावर लेके खूब अच्छा। ये राहु बहुत खुश भी होता है, बहुत अच्छी क्रीम, लोशन, खुशबू वाली जो चीज होती है ना, अरोमा Yes. ऑयल, तो ये आपको जो 2 बजे तक जाके नींद भी अच्छी देगा पहले। ठीक है, ग्रेट। एकता बताइए। हाँ बताइए, कंटिन्यू। आपने कल बोला था कि वी विल डिस्कस आल्सो द नाइट शेड्यूल कि हम लोग मतलब बेड टाइम पे जाते वक्त क्या मतलब क्या क्या करते हैं। हाँ ब्रशिंग एंड ऑल। या यू वांट टू शेयर? वो असाइनमेंट में भी था। अब नो मैम, बिकॉज आई डिडंट डू। मैंने बताया ना, मेरा तो वैसे भी वर्क स्टडी शेड्यूल रहता है, तो मैं तो उसी में ही लगी रहती हूँ। ओके, ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट। एकता, यू वांट टू गो नेक्स्ट? या मैम एक्चुअली मैं अभी जल्दी सोने वाली हूँ उससे और जल्दी उठूंगी। अच्छा, जल्दी मतलब क्या टाइमलाइन बनाई है आपने दोबारा नहीं अपने लिए रिवाइज? मैम अभी आई थिंक जो 2 o'clock हो रहा है उसको 12 o'clock तक। दैट्स अ बिग चेंज। अगर आप 2 से 12 में ले आती हैं एक ये 8 दिन की वर्कशॉप में, तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है। बट फिर कंसिस्टेंट क्यों होना चाहिए? नहीं 2 दिन हमने 12 बजे किया, फिर कौन सेल्फ लव, कौन पूजा मैम, कौन सी वर्कशॉप, फिर आ गए 2 बजे। फिर ऐसे नहीं, मॉनिटरिंग आपको खुद ही करनी है। इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, सपोर्ट सिस्टम के लिए वी आर देयर इफ यू नीड एनी गाइडेंस, बट डे टू डे लेवल पे माइक्रो मैनेजमेंट तो हो नहीं पाएगा। डे टू डे लेवल पे आपको खुद करना। Very nice. Any night rituals that you follow or you will follow? I'm just brushing and face wash. That's it. Okay, all right. हाँ, वो भी एक कहावत है ना, रात में मंजन नित कर। हाँ, very nice. Okay. भारती, मैम क्या कहना चाहती हैं? समथिंग। हाँ मैम एक्चुअली मुझे एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड मैंने पढ़ा था कि लाइक वीनस इज आल्सो रिलेटेड टू क्लोथ्स एंड एवरीथिंग फैंसी। तो अगर लाइक इफ वी इंडल्ज इन सेल्फ लव और fresh clothes or something that like follow that rituals and all. So Venus is also about abundance, wealth and beauty. So directly हमारा अगर हम खुद पे ध्यान देंगे तो हमारा Venus से हमें abundance and like life काफी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रही हो, बहुत अच्छी वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानती हो तुम तो। यू आर वेरी राइट। वीनस और शुक्र ग्रह इज
for luxury, giving us comfort in our life. So yes, when you pamper yourself, when you work on self-love, when you take multiple times shower in the day, wear nice lingerie, wear nice night dresses, you know, then yes, you are strengthening your Venus also, which means money, 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 money. Okay, you get promotion. Yeah, so do some shopping, investment. Okay, when your mother or your husband asks कितने पैसे क्यों लुटा रहे हो, so you're going to put it on Pooja ma'am कि बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर है और उन्होंने कहा वीनस स्ट्रांग हो गई, ये इन्वेस्टमेंट है, देखो 4,000 रुपए खर्च हो 40,000 आएगा. Yeah, but jokes apart, you're right, you're strengthening your Venus. ठीक है, तो ये एस्ट्रोलॉजी कैसे ऑनलाइन पढ़ती हो, क्या करती हो? मुझसे तो एस्ट्रोलॉजी मैम पढ़ी नहीं तुमने ऑनलाइन कभी. गूगल. ठीक है, वेरी नाइस, थैंक यू. भारती, व्हाट डू यू वांट टू ऐड? मैम मैं ना दिन में ना अपने मतलब जैगिंग वगैरह टी शर्ट डाल के रखती हूँ, बट रात में ना मैंने एक टी शर्ट रखी हुई जो थोड़ी घिसी हुई है, मतलब चाहे वो एसी में भी सोती हूँ, बट मैं वो जैसे अब मैं आज से मैंने अभी सुना आपसे, अब मैं उसे आज हटा दूंगी और ऐसी टाइप अपनी पहन के सोऊंगी. और मैं रात को सोते टाइम ना अपना लेग्स फीट को ना क्लीन अप करती हूँ, उसे मसाज करती हूँ और अपना मतलब कॉम करती हूँ रात में. वेरी नाइस, कॉम कर बन बना के रखती हूँ ना, तो रात को इसे कॉम करके फिर सोती हूँ. वेरी नाइस, बिकॉज नाइट रिचुअल्स में. हाय डॉल, आज घूंघट में है हमारी डॉल. नहीं मैम, वो ना कुछ उसका स्कूल में कुछ मिला है ना, तो वो मतलब ट्रेडिशनल लुक मिरर में देख के ना प्रैक्टिस कर रही अच्छा थी. चलिए ठीक है. सो Say hi. आइडियली हमारे पास जो है 7 अलग अलग कलर की टी शर्ट्स बनाओ नाइट के लिए और कलर थेरेपी के हिसाब से पहनो. सोमवार के दिन ये, मंगलवार के दिन ये. आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया. ओके, और वो घिसे हुए कपड़े नहीं पहनने. अब शनि जी को नाराज मत करो. शनिदेव महाराज की जय जय. हाय हाय, हाउ आर यू? I can't hear you, sweetheart. म्यूट हो गया है. Okay, no problem. We can't hear you. यहाँ पर तो म्यूट नहीं नजर आ रहा है. So Hello, no problem. ma'am. Hi, Hello, how are ma'am. you? Hi, I how am are fine. I am Okay. fine. What about you? you? We all are very nice. सब लोग hello बोल दो यार हमारी एंजल को. Hello. Hi. Yeah. So today is our day 6 of our workshop. It's an 8-day workshop. So we have 2 more days to go. You can join us for rest of the days if you want. मैंने अपने मम्मा को बोला. हाँ, मम्मा को बोला हमने. मम्मा ने एलईडी लगा रखी थी. अच्छा ठीक है, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम. ठीक है. सो भारती जी, वो घिसा हुआ कपड़ा हटाना है और अलग अलग करना है. ठीक है, जैसे पिलो आपका कलरफुल है ना, पिलो में ये नोट्स जो आप ले रहे हो उसके नीचे देखो इतने सारे कलर्स हैं. हाँ, ऐसे अलग अलग सारी टी शर्ट्स खरीद डालो. हाँ जी, ठीक है. चलिए, हु वांट्स टू गो नेक्स्ट? आशिमा, यू हैव एनी शेयरिंग, एनी क्वेश्चन? मैम आज तो कुछ नहीं है सच. Okay, Sonia, anything from your end? Well, Pooja, I would like to say that, it's not, even those who do not believe in astrology or the fact that, your actions might offend some planet or anything, it's more to do with your regular habit. If you're getting up on time, if you have a schedule whereby you brush and you freshen up and you change your clothes, I think that itself gives you a different level of energy and your day goes great. So you're doing it for yourself. Whether you're going to office or not, if you make that as a habit, your day goes great. And similarly, at night Absolutely. also, if you form a ritual and do it, why not? It will definitely. Absolutely. And see, such a wonderful thing. We spoke about Venus, strengthening Venus. Venus gives luxury. And today is day 6 of the workshop. Look at the coincidence. Number 6 is associated with Venus. Every planet has a number.
9 planets, numerology, science of numbers 1 to 9, all planets, 9 planets. So today, day 6, we are talking about nightwear, innerwear, clothes and everything, perfumes, creams, whatever. Venus and number 6. Great. So Sonia, can you also please read us out the day 7, tomorrow's topic in the agenda? बस 2 दिन बचे हैं. Just give me a minute. मैम वैसे आज डे भी 15 है तो वहाँ पे तो भी 6 बन रहा है. हाँ, उसका जो जोड़ है, very good. So That's also for number tomorrow, it is compulsions, kick or kiss, and day Yes. 8 is paradigm shift, the journey Yes. from आज taker का to giver. assignment. Yes. So now we just have 9 minutes to go. Yes. So tomorrow we're going to talk about, tomorrow's topic is compulsion, kiss or kick. So आज का जो assignment वो ये है, हमें अपने compulsions के list बनाने हैं. Compulsions में जरूरी नहीं है कि वो I'm addicted. हम किस चीज से addicted है? मेरा compulsion है कॉफी पीना या smoking करना या drink लेना. सिर्फ compulsions ये नहीं होते हैं. Compulsions can be situations and behavioral pattern also. ठीक है? कि मेरा compulsion है कि मुझको attention seeking behavior चाहिए होता है to feel good. या मेरा compulsion है कि husband से लड़ाई होगी तो खूब सारी shopping कर डालो. जो चीजें घर लाके पता चलता है या ऑनलाइन मंगाई बाद में पता चलता है आधा सामान तो चाहिए भी नहीं था, जरूरत भी नहीं थी. इम्पल्सिव शॉपिंग जिसे कहते हैं, तो ये भी एक कंपल्शन ड्रिवन बिहेवियर हो सकता है. ठीक है. सो आज के असाइनमेंट में आप सब लोग ये लिस्ट बनाएंगे कि आपके इंडिविजुअल कंपल्शंस क्या हैं. दिस कुड बी, आई रिपीट, this could be any addiction, not necessary, it is not just limited to addiction to substance, it could be behavioral patterns, it could be dependency on somebody. वो भी एक कंपल्शन हो सकती है कि आप ओवर पोजेसिव हो रहे हैं अपने पार्टनर को लेके और पार्टनर इसलिए आपका भाग जाता है सफोकेटेड फील करके कि स्पेस नहीं मिल रहा. ये भी आपकी कंपल्शन है एक तरीके से, कितना आप ओवर पोजेसिव हो रहे हैं, ये भी एक कंपल्शन है. तो हम सब जो है अपने कंपल्शंस की आज लिस्ट बनाएंगे. दिस इज टुडेज असाइनमेंट एंड देन टुमारो वी गोइंग टू लुक एट इट. वी वांट टू कंटिन्यू किसिंग इट बिकॉज़ सो फार वी हैव बीन किसिंग आवर कंपल्शंस और वी वांट टू किक इट. एंड यू आर मोर देन फ्री टू शेयर कि अगर आपने कोई कंपल्शन था आपने उसको किक किया. आई विल आल्सो शेयर माय एग्जांपल्स कि मेरे क्या कंपल्शंस थे मेरी जर्नी में, मैंने किन कंपल्शंस को किक किया, कैसे प्रॉब्लम आई. अच्छा, इतना इजी नहीं होता कि आज हमने डिसाइड किया कि भाई ये कंपल्शन है, लिस्ट बना ली और छोड़ दो, कल से छोड़ दिया. These patterns become very very addictive. तो कल हम डिटेल स्टडी करेंगे कि वो एडिक्टिव पैटर्न क्यों होते हैं, उसकी साइकिल क्या है, स्टेजेस क्या है साइकिल के, और उस साइकिल को ब्रेक कैसे करते हैं कंपल्शन के साइकिल को. ठीक है. तो ये सब जो है you know, even addicted to different partners or polygamy or sexual addictions, बहुत तरीके के कंपल्शंस हो सकते हैं. तो आप लोगों को देखना है कि आपके कंपल्शंस क्या हैं और कल हम 6 o'clock मिलेंगे और फिर इसके बारे में देखेंगे. ठीक है. So any question anybody has today before we just have 5 more minutes to go. Anybody has a question, please ask before we wrap up for the day. मैम जो हमने टी शर्ट्स लेनी है वो साथ ही लेनी है? That was an example. You have to see your budget, whatever you like. You can take more the merrier. घर वाले परेशान हो जाए, पता चले आज 15 तारीख है, अभी आधा महीना बचा और पूरे महीने के पैसे आपने बजट उड़ा दिया, ऐसा भी नहीं. So you see your pocket. That was just an example, है ना, कि कलर थेरेपी के साथ किसी भी कलर की ले सकते हैं ना हम लोग? हाँ, जैसे मैं हाँ, रात को सोने के लिए कंफर्टेबल जो भी आपको कॉटन के हो जैसे तो अच्छा रहेगा, है ना, रात को. और तो मैम उसको दिन में नहीं यूज करना, बस रात के लिए रखना है? नहीं, रात के कपड़े अलग, दिन के कपड़े अलग. तभी हमने ये पूरा टॉपिक आज का अलग बनाया. नाइट वेयर जो है बिल्कुल अलग है. ये नहीं कि दिन में भी वो जीन्स के ऊपर या लेगिंग के ऊपर टी-शर्ट पहन के घूम रहे, नहीं. वो वार्डरोब में एक खाना ही अलग होना चाहिए. नाइट के कपड़े नाइट के और दिन के कपड़े दिन के, उसको मिक्स ही नहीं करना. ठीक है. बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग, है ना. हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन. सी व्हेन यू आस्क क्वेश्चन इवन अदर पीपल गेट आंसर्स एंड क्लैरिटी. जैसे बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया और बहुत लोग ये कर रहे होंगे, भाई टी शर्ट रात को पहन ली कभी कभी दिन में, बट अब कितने सारे लोगों को फॉर्मली पता चल गया. ठीक है. एनी मोर क्वेश्चन एनीबडी हैज? Lovely, then it's either all clear or
nothing clear. I'm assuming all clear. All right then, thank you so much for your time. And we'll meet tomorrow. And like I said, this is just the basic workshop on self-love. And I have plans to further introduce very soon advanced level of सेल्फ लव प्रोग्राम ऑल्सो. आप देखिए बेसिक लेवल में इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, फिर थोड़े दिन का गैप देंगे ताकि आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकें. फिर उसके बाद हम एडवांस प्रोग्राम करेंगे जहाँ पे और बहुत डीप ऑपरेशन होंगे हमारे माइंड के, हमारे हार्ट के. एंड देन वी आल्सो प्लान टू कम आउट विद अदर ऑनलाइन वर्कशॉप्स लाइक ऑन पेरेंटिंग, लाइक ऑन इनर चाइल्ड हीलिंग, जहाँ बहुत से लोगों ने बात करी कि अभी एडल्टहुड में हमको कुछ इश्यूज हैं, जो इनसिक्योरिटी, अबैंडनमेंट, पोजेसिवनेस, कुछ भी हो सकता है जो आ रहा है पैटर्न हमारे पर्सनालिटी में हमारे चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स की वजह से, कि हमारे चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा थी या पेरेंट्स के साथ इश्यूज थे या किसी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, तो उस पे भी हम वर्कशॉप करेंगे. एंड 21st अपकमिंग, आप लोगों को मैसेज ऑलरेडी मिल गया होगा, सिंस इट्स इंटरनेशनल योगा डे, सो वी आल्सो केप्ट अ कॉल on 21st 6 to 7 p.m. same time. So we'll do some meditation, little bit yoga, little bit meditation, little bit chanting. So we'll all meet that day also. So stay tuned in, and also if you have any feedback, any suggestion, any input कि मैम इस topic पे भी एक workshop बनाएं, इस पे बनाएं, तो वो भी हम जरूर करेंगे. So now let's wrap it up. Thank you so much for your active participation and your time, and I love you all. Namaste. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, everyone.